Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to understand our very first chapter, which is understanding programming languages. So, in this chapter, we will be going to discuss about certain languages which are understood by our computer. So, let's do the chapter without wasting any further time. The name of a chapter is Understanding Programming Languages, and the topics which we will going to discuss in this chapter are programming languages, low level language, high level language यानी कि third generation language, then translator, fourth generation language which is 4GL, and fifth generation language which is 5GL. Now, before that, we have an amazing thought, which is if you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find excuses. Now we have an activity which says answer the following questions. First is in which state do you live? आप जिस भी statement रहते हो आपको यहाँ पे उसको mention करना है. Whatever state in which you live, then what is your mother tongue? That means what is the language of your mother tongue, which can be Hindi, English, anything. Now let's start. There is a boy who says, "Hi Kavya, how do we communicate with each other?" Then she says, "Hi Mayank, हम communicate कर पाते हैं." That means we can communicate with each other. Language is the mode of communication. दो जनों के बीच में बात करने के लिए लैंग्वेज एक मोड होता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स एंड सम बेसिक नेचुरल लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन आर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, etc. Then he says, "Can you guess how do you communicate with your computer?" Your computer will not understand any of these natural languages to transfer data and instruction. Then she says, to communicate with computers, there are computer programming language specially developed so that you can pass your data and instructions to the computer to do specific job. यानी कि to make something understand to the computer. अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शंस कमांड्स कंप्यूटर समझे तो हमें उनको कंप्यूटर की ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड करना पड़ता है, जैसे फॉर्ट्रन, बेसिक, कोबोल, एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जांपल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इट. लेट्स स्टार्ट. सो वी ऑल नो दैट लैंग्वेज एक मीडियम होता है टू एक्सप्रेस our views and ideas. It is essential for all those who have understanding capacity. Computer जो है they can also understand the things, so it also requires language through which anyone can interact with it. Unfortunately जो computers हैं वो natural language को understand नहीं कर सकते. As a result हमें उनके साथ communicate करना पड़ता है using computer languages या फिर programming languages. नाउ कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ नहीं है बट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है. कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच जो इंस्ट्रक्शंस या फिर डेटा हैं जो ट्रांसमिट हो रहे हैं कंप्यूटर को. इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव अ वोकैबुलरी ऑफ देयर ओन. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. जब भी वो एग्जीक्यूट किया जाता है तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है? एक पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट करता है. दैट मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर मैनर में किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है. प्रोग्राम्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को फॉर प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेटा. नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है? द लैंग्वेज इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन. एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं थ्रू विच जो ह्यूमंस हैं वो इंटरेक्ट कर पाते हैं विद कंप्यूटर्स. और हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका खुद का कुछ सेट ऑफ रूल्स है विच आर फॉलोड, जो फॉलो किए जाते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो ये जो रूल्स हैं दे आर नोन एज द सिंटेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम which must be followed, जिसको फॉलो करना चाहिए to write the valid program. From the first generation to the present day, fourth generation of computers, several programming languages have developed. कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक यानी कि टिल प्रेजेंट बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुई हैं. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्ड हुई हैं विच आर बीइंग यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने डिवाइड किया है इनटू फॉलोइंग टाइप्स. तो हमारे पास होती है लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. जैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये लो लेवल की हो सकती है या फिर हाई लेवल की हो सकती है. लो लेवल में हमारे पास आता है मशीन लेवल और असेंबली लेवल, लेकिन हाई लेवल में हमारे पास आता है पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस एंड कोबोल.
नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सिंपल होनी चाहिए, इजी टू लर्न एंड यूज होनी चाहिए, इसकी रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ह्यूमंस इजीली। इट हैज द एबिलिटी टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सके। इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना इजी होना चाहिए और एग्जीक्यूट करना। इट कंज्यूम्स लिटिल स्पेस इन मेमोरी। It should be well structured, documented so that it's suitable for application development. ये एक single environment provide करना चाहिए known as integrated development environment, which is IDE, and it must be consistent in terms of syntax and semantics. There are some questions which we need to say circle on yes अगर वो statement true होती है तो। A program is a set of instructions which makes the computer work in a particular manner. Yes. Programming languages are divided into three types. No. Programming languages has the ability to define the complex structure. Yes. Programming language must be consistent in terms of syntax and semantics. Yes. And computer can understand the human language. No. नेक्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है? लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के क्लोजर होती है देन टू ह्यूमन लैंग्वेज। इट इज अ मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो एक मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोवाइडेड होते हैं या फिर इंग्लिश में प्रोवाइडेड होते हैं। So it can only understand and execute instructions which are given in the form of machine language, that is 0 and 1. Low level languages जो होती है हम उनका यूज करते हैं for writing computer instructions in binary code, and there are two types of low level languages. Low level languages के भी हमारे पास दो टाइप्स है, जैसे मशीन लेवल और असेंबली लेवल। तो पहले हम पढ़ेंगे मशीन लेवल के बारे में। ये जो लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं, जो यूज करती है बाइनरी डिजिट्स का, उसको मशीन लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता है। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो 0 और 1 का यूज करती हो टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, वो हमारी मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज एक फर्स्ट जनरेशन है ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एंड ये लोएस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो बेसिकली जो ओनली लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है वो है हमारी मशीन लैंग्वेज। ये यूज करके इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी फॉर्म, दैट इज 0 एंड 1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को यूज करती है, जो डायरेक्टली इंटरप्रेट करा जाता है बाय द सीपीयू विदाउट नीड ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, इस लैंग्वेज को हमारा सीपीयू डायरेक्टली रीड कर लेता है। द सिंबल 0 स्टैंड करता है फॉर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, जबकि जो 1 होता है दैट स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स। सिंस जो कंप्यूटर है वो रिकॉग्नाइज करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, देयरफॉर वो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके का दिख सकता है। इट इज नॉट एन इजी लैंग्वेज फॉर यू टू लर्न बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस। क्योंकि ये 1 और 0 को कंसिस्ट करता है, इसलिए इसको ह्यूमनली अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ इस लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या है? इट इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर अ कंप्यूटर as the instructions are directly executed. It can be directly typed and executed. No translator program is required to translate the code because ये directly understood होता है by the computer. इसके कुछ disadvantages हैं, जैसे ये ज़्यादा difficult है to program in machine language. Machine language dependent होती है, the programmer has to remember a lot of codes to write a program which result in program errors. नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर आता है असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। अ कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज जो डील करता है विद हार्डवेयर रजिस्टर्स बाय नेम इज नोन एज असेंबली लेवल लैंग्वेजेस। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक सेकेंड जनरेशन होती है ऑफ लो लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एंड दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज अलाउ करती है प्रोग्रामर्स को टू राइट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस थ्रू द यूज ऑफ सिंबॉलिक कोड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड मेड अप ऑफ जस्ट जीरोस एंड वंस। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये इजी टू राइट है, रीड एंड अंडरस्टैंड। इट मेक्स द प्रोग्रामिंग प्रोसेस फास्टर एंड एरर कैन बी आइडेंटिफाइड। जो एरर होता है हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं
ज्यादा इजीली एज कम्पेयर टू दी 1GL। इसकी डिसएडवांटेजेस है कि ये भी मशीन डिपेंडेंट है। प्रोग्राम्स जो होते हैं इस लैंग्वेज के अंदर दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, तो यहाँ पे हमें ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर हमारे पास आती है हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो जो restrictions होते हैं in the usage of machine and assembly language prompt people to develop language with the following features, जिसके अंदर simple और user friendly language हो, language that is machine independent, जो machine independent हो। Now, owing in the above mentioned features, it becomes easy to learn and use the computer language। इन features की वजह से computer language को learn और understand करना बहुत easy हो जाता है, and large number of people जो हैं they started writing computer programs using these languages। इस वजह से इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज इज क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। हर एक हाई लेवल लैंग्वेज के अपने खुद के कुछ सेट ऑफ रूल्स है एंड ग्रामर फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। These unique sets of rules are generally referred to as syntax। इन्हीं जो रूल्स सेट का रूल्स होता है उनको हम सिंटेक्स बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेज है that use English words and or mathematical symbols जैसे plus, minus, multiply, percentage, divide, etc. rather than mnemonic codes। Each instruction in the high level language is translated into many machine language instructions that a computer can understand। Now, mnemonic code क्या होता है? It is like an abbreviation that is easy to remember the original words जैसे MPY for multiply and ACC for accumulator। There is a cool fact which says Ada Lovelace was the first to create published computer program in the mid 19th century। She was a mathematician who translated Luigi Federico Menabrea writing on the analytical engine, and in this translation Ada had added her own extensive notes and created a method for calculating Bernoulli number for the analytical engine। अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है वो पहले ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू मशीन कोड ताकि हमारा कंप्यूटर उसको समझ पाए। एवरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस इट्स ओन बिल्ट इन ट्रांसलेशन प्रोग्राम। इसके एडवांटेजेस हैं दे आर इजियर टू रीड राइट मेंटेन एंड लर्न एज दे यूज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। दे आर यूजर फ्रेंडली एंड रिक्वायर लेस टाइम टू राइट। दे आर पोर्टेबल मतलब दे कैन वर्क ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। There is another fact which is लोकेटर आइडेंटिफायर सेपरेशन प्रोटोकॉल यानी कि LIST ये पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी फॉर राइटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स एंड इट वाज क्रिएटेड बाय जॉन मैककार्थी। इसके डिसएडवांटेजेस हैं दैट दे हैव लेस एफिशिएंसी, द ट्रांसलेटर इज नेसेसरी टू ट्रांसलेट लैंग्वेज, कन्वर्जन टाइम इज स्लोअर देन असेंबली लैंग्वेज। नाउ टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है जावा। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इन अ मॉडर्न डे लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रो सिस्टम्स। ये एनेबल करती है प्रोग्रामर्स को कि वो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं इंग्लिश बेस्ड कमांड्स पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यूमेरिक कोड्स। इट इज आल्सो नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि इट कैन बी रीड एंड रिटन इजीली बाय ह्यूमंस। जावा एक सेट ऑफ रूल्स है जो डिटरमाइन करता है कि हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर written। These rules are known as syntax। There is another cool fact which says Fortran was one of the earliest language designed for scientists and engineers। Now next इसमें हमारे पास आती है C या फिर C++। तो ये भी एक हाई लेवल क्लासिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जो हमें अलाउ करती हैं टू डेवलप firmware एंड पोर्टेबल एप्लीकेशंस। जो सी लैंग्वेज है वो डेवलप की है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आइडियल लैंग्वेज है फॉर डेवलपिंग फर्मवेयर सिस्टम। कोबोल, कोबोल का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो इनिशियली क्रिएट की थी बाय द शॉर्ट रेंज कमिटी इन 1959। एज इट इज क्लियर बाय इट्स नेम, एज इसके नेम से क्लियर है इसको यूज किया जाता था फॉर बिजनेस पर्पसेस। इट इज यूज्ड इन फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर बिजनेस एप्लीकेशंस। जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ANSI हैज मेड सेवरल रिविजन्स ऑफ द कोबोल लैंग्वेज। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये पहली इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम लैंग्वेज है विच इज फॉर्ट्रेन।
तो जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है ये डिजाइन करी गई थी 1957 बाय एन आईबीएम टीम लेड बाय जॉन बैकस. इट वाज डेवलप्ड फॉर साइंटिफिक कॉम्पिटिशंस. साइंटिफिक कॉम्पिटिशंस के लिए इसको डेवलप किया गया था विद रियल नंबर्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स इनटू एफिशिएंट मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर क्या होते हैं? तो जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको बोला जाता है सोर्स कोड. तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं. ट्रांसलेटर्स क्या करता है? किसी भी रिटन प्रोग्राम को लेता है इन सोर्स लैंग्वेज एज इनपुट, उसको कन्वर्ट करता है इनटू अ प्रोग्राम इन टारगेट लैंग्वेज एज आउटपुट. ये ऑल्सो डिटेक्ट करता है एंड रिपोर्ट करता है एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर्स होते हैं तो ये उनको भी आइडेंटिफाई कर देता है. ट्रांसलेटर वर्क करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड अ कंप्यूटर. थ्री टाइप्स के ट्रांसलेटर्स होते हैं: असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. असेंबलर क्या है? असेंबलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज. ये जो असेंबलर है ये देखता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन उसका बिल्कुल करेक्ट हो एंड जनरेट करता है डायग्नोस्टिक मैसेजेस इफ देयर आर मिस्टेक्स इन द प्रोग्राम. अगर उसमें कोई भी मिस्टेक्स होती हैं तो जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है हम उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं. दैट मीन्स सोर्स कोड असेंबलर ने उसको कन्वर्ट किया और एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया. इंटरप्रेटर इज इट इज ट्रांसलेटर प्रोग्राम टू कन्वर्ट. जब भी हमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू मशीन लैंग्वेज तब हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं. ये ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, मतलब ये कन्वर्ट करेगा एक लाइन को, एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को एंड देन रिपीट करेगा सेम प्रोसीजर for the remaining instructions. Errors, if any, are to be immediately removed and the converted form is not stored anywhere. जो converted form होती है यहाँ पे वो कहीं भी store नहीं होती and has to generate it at the time of execution to the at the time of execution of program. Interpreter programs जो होते हैं वो prefer किए जाते हैं for beginners and are slow in execution speed. तो इसमें क्या होता है, जैसे सोर्स कोड है बीच में इंटरप्रेटर है और वो एक एग्जीक्यूटेबल कोड में उसको कन्वर्ट कर देगा. देन हमारे पास आता है कंपाइलर. तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज. ये ट्रांसलेट करता है कंप्लीट प्रोग्राम, पूरा का पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर देगा एंड उसको एग्जीक्यूट कर देगा एट वन टाइम. ये जनरेट करता है एरर रिपोर्ट आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ एंटायर पेज. कंपाइलर फास्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर. जैसे सोर्स कोड है कंपाइल होगा और एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाए. नाउ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी कि हमारी 4GL क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है ये क्लोजर होती है टू ह्यूमन लैंग्वेज देन एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज. तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है विच इज 4GL, इनको हम वेरी हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं. दे अलाउ यूजर टू डिफाइन व्हाट इज रिक्वायर्ड. ये मदद करते हैं यूजर को ये बताने में कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है रेदर देन हाउ इज टू बी डन. ये नहीं बताते कि कैसे करना है, ये बताते हैं कि किस चीज की जरूरत है. तो दीज आर डिजाइंड टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो 4GL एक यूजर फ्रेंडली, पोर्टेबल और इंडिपेंडेंट है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम and is designed to reduce level of programming efforts and cost. 4GL एक बहुत high speed रखता है of execution. It takes minimum efforts from user to obtain any information. So some examples of these language include Perl, Python, Ruby, SQL, MATLAB यानी कि मैट्रिक्स लेबोरेटरी. इसके एडवांटेजेस होती हैं that 4GL is friendly for users. It is easy to develop programs using 4GL. इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो प्रोग्राम है वो स्लोली रन करता है बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस इन साइज एंड डिजाइन. ये रिक्वायर करता है लॉन्ग टाइम टू कन्वर्ट इनटू मशीन कोड. एंड लेट अस लर्न अबाउट सम 4GL लैंग्वेजेस जैसे पाइथन. तो पाइथन वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज है जो इजी है टू लर्न एंड यूज. इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ये ऑफर करती है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विद अदर लैंग्वेजेस एंड टूल्स. As it comes with extensive standard libraries, जो code है that can be written once and run on almost any computer without needing any change in the program. Next आता है Perl. तो Perl एक older यानी कि open source general use interpreted language है which is developed with usability in mind. It is a family of script programming language that is similar, जो similar होती है in syntax to the C language,
इसका हम यूज करते हैं फॉर टेक्स्ट मैनिपुलेशन एंड नाउ इसको हम वाइड रेंज ऑफ टास्क के लिए यूज करते हैं इंक्लूडिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग, जीयूआई डेवलपमेंट एंड मेनी मोर। फिर हमारे पास आ जाती है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी कि 5GL। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो हमारी होती है इसका हम यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। जब भी कोई लार्जर प्रोग्राम होता है, इंट्रोड्यूस होता है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर क्रिएटिंग द एल्गोरिदम। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो बहुत सारी एल्गोरिदम्स बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू सॉल्व द प्रोग्राम। दैट इज वाई 5GL को इंट्रोड्यूस किया गया। There is a cool fact which is in constraint programming, a problem is viewed as a series of limitations on what could possibly be a valid solution. फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं ये नेचुरल लैंग्वेज है एंड आर वेरी क्लोजली रिजेंबल्स ह्यूमन स्पीच। इनको डिजाइन किया गया है टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट। दे आर मेनली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है उनकी रिसर्च में। The programming is generation focused on constraints programming and कुछ examples हैं of fifth generation are Prolog, Mercury, OPS5, AI, etc. इसकी advantages होती हैं that these languages can be used in query the database in a fast and efficient manner. In this generation of language, user communicate कर सकता है with the computer system in a simple and easy manner. Let's revise the chapter. The language in which computer program is written is known as programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, लो लेवल एंड हाई लेवल। जो लैंग्वेज है विच जो बाइनरी डिजिट्स का यूज करती है उसको मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। असेंबली लैंग्वेज एक सेट ऑफ कोड है दैट कैन रन डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर प्रोसेसर। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मेंटेनिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। टाइप ऑफ लैंग्वेज जो क्लोज होती है टू ह्यूमन लैंग्वेज उसको हाई लेवल बोला जाता है। ये जो लैंग्वेज है ये कुछ फॉर्मेट का यूज करती है जो सिमिलर होता है टू इंग्लिश। कुछ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, फॉर्ट्रन एटसेट्रा। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबलर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो है वो यूज होती है इन द फील्ड ऑफ AI and it is constraint based programming. Now let's do the exercise of the chapter. First is darken the correct option on OMR sheet. हमें यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को डार्कन करना है OMR शीट पे। तो फर्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो है हमारी मार्कअप लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे बी को कलर कर देंगे। नेक्स्ट इज which one of the following language can be directly understood by the computer? Machine language. So A, we will color A completely. Then Perl, Python, Ruby, SQL, MATLAB are some examples of dash language, which is fourth generation. So D option. Then next is the program converted into machine language by a translator is called object program. So which is B. Now the next is which of the following translate the program line by line? Interpreter, which is again B. Now the last one is dash GL are used in the field of AI, fifth. So D. Next is fill in the blanks. A dash is a set of instructions when executed makes the computer work in a particular manner. Program. This language is but the language in which computer program is written is known as programming language. Dash language uses mnemonic codes or symbols. Assembly language. And the type of language that is close to human language is called 5GL. Dash is quite similar to English language, high level language. Dash is a computer programming language, Java. Now, true false.
Program must be written in machine language. False. Assembly language is also called the third generation language. True. Compiler converts high level programming language to English language. False. Java is low level language. False. Basic, Fortran, C, C++, Java, etc. are types of high level languages. True. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise your chapter again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.